पेरेंट क्लास कितने होते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास कितने होते हैं? कितने पेरेंट क्लास होते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में? एक। डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए जरा। हर्षवर्धन, आप आउट ऑफ टाउन थे, आपके पेरेंट्स को पता था कि आप कॉलेज नहीं अटेंड करिए? टाउन में ही थे तो आपके पेरेंट्स को पता था? दे नो इट? मीट मी आफ्टर द लेक्चर। लो बताओ सिंटेक्स का लो। चलो लास्ट गर्ल, टेल मी अबाउट इंटरफेस। What is multiple inheritance? More than two parents class. Two or more than two parents class. Now, this is a multiple inheritance. This is hybrid. This makes hierarchical. ये तीन hierarchical बन रहे हैं, ठीक है? hierarchical पता है? हाँ। और ये जो दो parent हो रहे हैं वापस से, ये multiple है, ठीक है? बच्चों, what is interface features? What are features of interface? Okay. Each variable is a final variable. Final means पीछे. Final means public. What is final? Constant. Okay. How to write final? How to define final? Syntax. What is the syntax to write final? Yes. To write final, what is the syntax? कैसे लिखते हैं फाइनल? सिंटेक्स वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं? वेरिएबल की सिंटेक्स, हाँ, इंटीजर वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो फाइनल कांस्टेंट अगर इसको बनाना है तो क्या करेंगे? ओके, सिट डाउन। नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ इंटरफेस? मेथड बॉडी इज डिस्क्राइब इन चाइल्ड क्लास। ओके, आप बताइए और फीचर्स ऑफ इंटरफेस। Methods are abstract by default because you don't write the body. Body नहीं लिखते हो. Okay. Sit down. Next point. खड़े हो जाइए.
Next point. Huh. Other features of interface. इंटरफेस को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. ओके, यू डोंट डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, राइट? आई मीन इंटरफेस. ओके, सिट डाउन. नेक्स्ट, इंस्टेंस वेरिएबल. व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल? इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या होता है? बाजू में अभी जो पूछा था आपको, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब anyone from the class who knows instance variable? Object, right? I have already written in my notes instance variable bracket में object और instant variable एक ही होता है, right? Sit down. Or any features, any features of huh? Okay, so what is the syntax? Can you please share it? What is the syntax? Okay, everything is same. Okay, और methods के बारे में? ओके, फिर मेथड वेरिएबल्स के बारे में, जो वेरिएबल्स इंटरफेस के अंदर डिफाइन है उसके बारे में कुछ बताएं. ओके ओके, बैठ जाइए. एनी अदर फीचर्स ऑफ इंटरफेस? व्हाट इज द कीवर्ड टू इनहेरिट इंटरफेस? implements, right? Okay, can you tell me the syntax of interface? Okay, sit down. Chalo, one another logical question. Suppose you are having a diagram like where you want to inherit another interface, मतलब interface is inheriting another interface. तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. Interface is inheriting another interface. Is it possible? Is according to you, is it possible? According to you, is it possible? Yes or no? Chalo, online students, are you able to hear me? Okay. Okay, Vedant, please unmute. Vedant. Yes, ma'am. Okay. So I told something about interface. Can you tell me about interface? India, ma'am. Can you tell me something? Ma'am, I have just joined. Okay. Okay, everybody is able to see the screen. Vedant, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Which kind of inheritance is this?
Hybrid. Okay. Hybrid is a collection of more than one type of inheritance, right? So which kind of inheritance are mixed over here? How to see? कैसे देखना है? देखो, starting with A, you will analyze A. A is directly connected to B and C. So this makes which kind of inheritance? ऐसे देखना है, ऊपर से start करना है. Parent class connected directly to which classes? Indirectly नहीं देखना है. Indirectly it is connected to D also, but it is directly connected to B and C. Which kind of inheritance this is? A, B and C. Hierarchical, right? Okay. Now when I say hierarchical, I can take class, class, class. तीनों को class ले सकती हूँ, कोई problem नहीं. पर यहाँ पे B, C, D. Now B and C directly ऐसा देखना है कि intermediate classes directly connected to whom? So intermediate classes B and C directly connected to D. So which type of inheritance is this? Multiple. B, C, D is multiple. So now if you take A as a class, suppose मैं A को क्या लेती हूँ? Class. ध्यान से देखना online students also. When I take A as class, scenario क्या होगा देखो. I take A as class. राइट नाउ बी सी को भी मैंने क्लास ले लिया था, पर फिर मुझे पता चला मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है, तो अगर मैं बी सी को अगर क्लास लेती हूँ तो डी में क्या आएगा? क्लास डी एक्सटेंस बी कॉमा सी. वो वापस फेल हो जाएगा. सो मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा. सो व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू टेक बी एज इंटरफेस. And I also have to take C as interface. B और C को क्या लेना पड़ेगा? Interface. Now मुझे पता चल रहा है कि B किसको inherit कर रहे हैं? B किसको inherit कर रहे हैं? A को. Now a interface cannot inherit a class. रूल क्या है? लिख के रखो. वो जो नोट्स बनाई थी ना, उसमें लिख के रखो. Interface cannot inherit a class. Right? Interface cannot inherit a class. A class लिखा कि नहीं इतना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखो, जो मैंने आपको नोट्स आके लिखवाई थी उसके नीचे एक पॉइंट और ऐड करो. इंटरफेस कैनॉट इनहेरिट अ क्लास. नेक्स्ट लाइन में लिखो अ क्लास कैन इनहेरिट इंटरफेसेस. अ क्लास कैन इनहेरिट इंटरफेसेस. समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम क्लास बनाने वाले, क्लास दी, तो वो बी और सी को इनहेरिट करे. सो क्लास कैन इनहेरिट इंटरफेसेस, बट इंटरफेस कैन नॉट इनहेरिट अ क्लास. इसका रीजन पता है? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास? व्हाई अ इंटरफेस कैन नॉट इनहेरिट अ क्लास? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Ketki, can you reply? Why an interface cannot inherit a class? Yes, ma'am. Can you please explain me? Ma'am, I don't know. Do you know about interface? Yes, ma'am. What do you know about interface? When I say interface, I cannot instantiate variable of interface. What does it mean? Interface is used to implement multiple inheritance. मैंने क्या बोला बेटा? When I tell you the statement interface cannot have instance variables, what does it mean? Interface has abstract. Interface means abstract class. It has final variables, so we cannot create the object of it. Okay. So you can't create object of it, not due to final variables,
but it cannot have objects due to its methods are abstract. उसके methods abstract है. आप बोल रहे हो स्टेटमेंट की इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. नो, इंटरफेस इज नॉट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स है वो एब्स्ट्रैक्ट है. मैं बताती हूँ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में. ये नेक्स्ट टॉपिक यही. Okay. सो इंटरफेस कैन नॉट हैव ऑब्जेक्ट. दैट इज करेक्ट. ओके, नाउ मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटरफेस एक क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता है. Can you please mute it? Yeah. Shalu, can you tell? One interface cannot inherit a class. Shalu Yadav? Yes, ma'am. Can you please tell me an interface cannot inherit a class? कि मैम वो इंटरफेस में मेथड्स नहीं डिफाइन होते हैं. ओके, सो इट कैन नॉट इनहेरिट अ क्लास. राइट. अगर हम ऐसा उल्टा सिनेरियो हो जाएगा. क्या सिनेरियो हो जाएगा? इंटरफेस एक टाइप का एब्स्ट्रैक्शन है जिसके अंदर डिटेल बॉडी होती नहीं है, तो क्लास उसको इनहेरिट करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा. तो हम उल्टा कर रहे हैं, क्लास को बना रहे हैं और इंटरफेस को इनहेरिट करवा रहे हैं. ऐसा पॉसिबल होगा नहीं. पहले बिल्डिंग बन जाएंगे, उसपे से प्लान बनाएंगे, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना. राइट. ओके, सो the another statement, write it down. A interface can inherit other interfaces. लिख के रखना students of online class also. A interface can inherit other interfaces. अब ये काम लगेगा हमें यहाँ पे. A interface can inherit another interfaces. तो जैसे मैंने आपको बताया कि a class, अब मुझे ऐसे में नहीं कर सकती extends a, ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर क्लास है ना. So what should I do? Harshvardhan, what should I do? What should I do? I can make the super parent class also as interface. Interface किसी को inherit करने वाला है. ये सिनेरियो में inherit करना पड़ेगा ना. B को हमने interface बनाया तो ऊपर इनहेरिटेंस आने ही वाला है. अब क्लास तो रख सकते नहीं है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले सुपर पेरेंट क्लास को भी हम क्या बना देंगे? इंटरफेस. एंड अ इंटरफेस कैन इनहेरिट अदर इंटरफेस यूजिंग द कीवर्ड कॉल एक्सटेंस. लिख के रखो, ये एग्जांपल लिख के रखो. अदरवाइज जो पॉइंट था ना, आपको बहुत काम लगेगा. इंटरफेस 7 मार्क्स का कंपलसरी एक्सटर्नल में आएगा. थियोरी एग्जाम की बात कर रही हूँ. 7 to 8 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन होगा. एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा. पूरे जो पॉइंट्स है, डायग्राम से लेके सिंटेक्स, पूरे मार्क मिलेंगे आपको एग्जाम्पल के साथ. इंटरफेस वाला क्वेश्चन एग्जाम में होता ही है. ये एग्जाम्पल लिखा और लिख के रखना. इंटरफेस कैन इनहेरिट अदर इंटरफेसेस यूजिंग एक्सटेंस कीवर्ड. लिख के रखो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? Sagar, can you explain me what I told just now? A interface can inherit other interfaces using extends keyword. Sagar, Savaikar? Yes, ma'am. Can you tell me about what I spoke right now? मैम क्वेश्चन रिपीट करो ना एक बार. प्रिया मेहता? यस मैम. यस, मैंने जो अभी बताया उसके बारे में कुछ बताइए. इंटरफेस कैन इनहेरिट एन अदर इंटरफेस यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड. Yes. Can you please elaborate?
Can you please explain me? Yes. Priya Mehta, I am asking you, can you please explain me that line? एक्सटेंड कीवर्ड से दो क्लास को Sudhir Sharma, explain me that. Sharma Sudhir, यस मैम। yes, explain me. मैम एक इंटरफेस के क्लास को दूसरे इंटरफेस के क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड से हम लोग उसको Class एक्सेस मत कर use सकते हैं। करो. Interface is a different thing. Class is a different thing. A interface can inherit other interfaces using extend keyword. यस मैम, मैं वही बोल रहा हूँ कि दो इंटरफेस को तीसरे इंटरफेस में एक्सेस कर सकते हैं, फिर जो क्लास लेंगे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लास्ट वाले इंटरफेस को। Okay. So as per this diagram, everyone, एक interface B can extends A using keyword extends. So in this scenario, you can make interface A, B, C, and you can make B as what? अब देखो B डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? B और C. So what should I write? B, C. जब भी यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कैसे लिखना है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन चेक कर लेने का, तो आपको आइडिया आ जाएगा. इज इट ओके? जब भी सपोज इंटरफेस बना रही हूँ तो इंटरफेस के साथ डायरेक्टली चेक कर लूंगी मैं इंटरफेस को कि डायरेक्टली इंटरफेस किसके साथ कनेक्टेड है. समझ में आ रहा है? फिर मैं अभी सी पे आई तो आई चेक सी किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. सो इंटरफेस सी इक्वल्स टू एक्सटेंस ए. इज इट क्लियर टू यू ऑल? राइट? ओके. इस टाइप से फिर नीचे आप बी का क्या बनाओगे? डी का ऑब्जेक्ट बनाओगे. ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द सेम? Online students, write yes or no. Confusion है? Okay. चलो. Now another important thing, A division की आज लैब थी. Students of A division जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, ऐसा क्यों ऑनलाइन अटेंड किया जा रहा है? Why the students are not coming over here and attending the classes? नेक्स्ट टाइम से जो स्टूडेंट ए डिवीजन के हैं और आपकी अगर यहाँ पे आने के टर्न है तो ऑनलाइन उसको मैं एक्सेप्ट एडमिट नहीं करूंगी. ठीक है? जब सब ऐसा कोई इमरजेंसी हो तो इट्स फाइन, बट तो आपको इन्फॉर्म करना है पहले से, क्लास के बाद नहीं, पहले से इन्फॉर्म करना है. और जो स्टूडेंट्स जिसका टर्न होगा वो यहाँ पे नहीं आएंगे तो उसको मैं एडमिट नहीं करूंगी. और एडमिट नहीं किया तो ऐसी अटेंडेंस जनरेट नहीं होगी. अटेंडेंस जनरेट नहीं होगी तो आई विल नॉट गिव यू मार्क्स ऑफ अटेंडेंस. इट शुड बी वेरी क्लियर. और 5th-6th सेमेस्टर में मार्क्स क्या होता है, यू वेरी वेल नो, राइट? ओके. आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास. मैं आपको थोड़ा बहुत लिखवाती हूँ और उसके बारे में डिटेल स्टडी बाद में करेंगे. अच्छा, बिफोर आई गो फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये डायग्राम कोई मुझे समझाएगा? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. ये डायग्राम कोई मुझे समझाएगा? ध्यान से देखो. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट. नो मॉडिफायर इज डिफॉल्ट, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना. ये क्या है, किसका डायग्राम है ये? किस चीज का डायग्राम है ये? एक्सेस स्पेसिफायर.
जो मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी, राइट? अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट इज अ फर्स्ट कॉलम, तो प्राइवेट सेम क्लास में एक्सेस होगा, यस। सेम पैकेज में नो, वो तो अदर क्लास में भी नहीं होता है, तो सेम पैकेज की कहाँ बात है, राइट? डायरेक्टली एक्सेस की बात है। सेम पैकेज नॉन सब क्लास नो, सब में नो आएगा, सिर्फ खुद के क्लास में ही वो डायरेक्टली एक्सेस होता है। नो नो मॉडिफायर इज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट सेम क्लास में एक्सेस होता है, यस। सेम पैकेज में, यस। सेम पैकेज नॉन सब क्लास, यस, है ना? मैंने बताया था सेम पैकेज में एक्सेस होता है, डिफरेंट पैकेज में वो एक्सेस होता नहीं, इट बिकम्स प्राइवेट। प्रोटेक्टेड सेम क्लास में, यस। सेम पैकेज सब क्लास इनहेरिटेड, आपको पता है प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन क्या है? इट इज एक्सेसिबल इन इट्स ओन क्लास एंड ऑल इनहेरिटेड क्लासेस, जो इनहेरिटेड नॉन इनहेरिटेड क्लासेस में नहीं होगा। तो सेम पैकेज नॉन सब, यहाँ पे आए हम, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, इधर नो आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, राइट? और डिफरेंट पैकेज बट सब क्लास मतलब इनहेरिटेड क्लासेस, तो यस आएगा, और नॉन सब क्लास में लास्ट में नो आएगा। सो इसमें यहाँ पे गलत है, कहाँ पे गलत है? सेम पैकेज यहाँ पे नो आएगा। आप करके ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप प्रोटेक्टेड बनाओगे ना, और सपोज डी को इनहेरिटेंस में रखा नहीं है और डी प्रोटेक्टेड को यूज कर रहा है, तो वो कर पाएगा। यहाँ पे सेम पैकेज नॉन सब क्लास मतलब इनहेरिटेड क्लासेस नहीं है, तो यहाँ पे नो आएगा। पब्लिक में सब में यस। इज दिस ओके? Okay, give heading abstract class. Okay, लिखो first point. A class is made as abstract. A class is made as abstract with the objective to provide class structure with the objective to provide class structure without implementation. Ma'am, Yes. to provide class structure Yes. without, ma'am?
without implementation. ओके मैम. Okay. Okay, नीचे लिखो, it is similar as normal class. It is similar as normal class. With some methods, declare as abstract. Declare as abstract. Next point. We cannot create object bracket में instance variable bracket over. We cannot create object bracket में instance variable bracket over of abstract class. Next point. The syntax is abstract, नीचे लिखो abstract class name. The syntax is abstract class name. नीचे लिखो example, यहाँ से कॉपी करो example, abstract class A. Abstract class A bracket, उसके अंदर लिखो abstract void call me. Abstract class name, that is abstract class A, अंदर लिखो abstract void call me, लिखा semicolon, और उसके नीचे लिखो void call me 2, और इसकी बॉडी भी कॉपी करो. Are you able to see? Online students, are you also able to see? जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया उतना कॉपी करो. Abstract class name, फिर यहाँ पे उसकी मेथड है एक जिसकी बॉडी नहीं है इसलिए सेमीकोलन, और एक मेथड है जिसकी बॉडी है इसलिए void call me, और उसकी बॉडी में लिखो system.out.println. This is a concrete method. लिख लिया? कॉपीड? ओके. नीचे की लाइन में लिखो abstract class can be inherited using extends keyword. Abstract class can be inherited using abstract keyword. Next line में लिखो abstract class. Next line में लिखो abstract class has abstract method and concrete method. Abstract class has abstract method and concrete method. समझ में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, राइट? बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाती हूँ. लिख लिया इतना? जिसने भी पूरा लिखा है स्क्रीनशॉट करके आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए. वत्सल, आपने लिखा है पूरा? यस मैम. वत्सल? यस मैम. हाँ, तो उसको आपको इनफॉर्मल ग्रुप पे शेयर कर दीजिए. जी मैम. Okay, next lecture में I'll teach you, otherwise in the lab, tomorrow is your lab, I'll teach you about abstract class. Okay, चलो everyone please log out. मैम. Yes. Ma'am, Yes. I have give you the reason not I'm able to join the offline class. Have you seen the text? Yeah, yes, I have already seen, I have already replied you. हाँ, so that's why I didn't see the message. So Okay, okay. yes ma'am. Yes ma'am. So sorry for offline.